Hi guys, good afternoon everyone. Can somebody please confirm if you can hear me online? Yes, sir. Audible. Great. So welcome to MCP camp people. Today we are starting with a rigorous answer writing program that will help you utilize the next 3 months in the most effective fashion. What happens in general during these 3 months? People have just given this. Some of you have already given your mains just now. It's been a month almost now. At the same time, there are people who have been studying from June, July, yeah, even before that, and a kind of a fatigue tries to set in. So we came up with this program with the idea how to utilize the next 3 months in the most effective manner. Festival season भी आ जाता है, so people tend to waste a lot more time here, and then a lot of people are also disillusioned कि करना क्या है समझ नहीं आ रहा है. Should we move on to prelims already because prelims clear नहीं हो रहा है 2-3 साल से? Should we continue with the mains? Should we do our optional? What should be done? So today's session is basically to detail out things as to how to go about things over the next 3 months and after that also as well. At the same time, how to make the best use of this particular program and how exactly are we going to go about in this program. ठीक है? So starting with a very basic idea कि करना क्या है या what is this program about. So the MCP camp focuses on building answer writing skills which is evolving over time. You have to understand that it is not the same as it was back in 2017, 2018, 2019. It is being evolving over time and people are becoming more and more skillful when it comes to answer writing. If you have seen copies of toppers especially, because I'm sure everybody here who wants to write this exam wants to crack it for civil services, that is IAS, IPS, all India services, sorry, that is IAS, IPS and IFS only primarily. है ना, करना तो आप यही चाहते हैं. So for that we have to understand that we have to score very well, and our competition is not with the 10,000 or the 13,000 people who will be writing mains. Our competition is with the first 200-300 people only who will be scoring very good marks. तो उसके लिए it becomes very essential कि हम आंसर राइटिंग का वो स्किल सेट डेवलप करें, वो बिल्ड करें, so that you are able to write any answer in a decent manner whatever is asked by UPSC during those 7 days. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है and I am sure people who have already written mains they understand that as well. First thing, right now people who have written mains already, it is important that you make a quick assessment of whatever you did in the preceding mains already because अभी आपके माइंड में फ्रेश है ये सब. So sit down with the papers, essay से लेके GS 1 2 3 4 and also your optional. Try to go through each and every question one more time. Try to recall आपने क्या लिखा था उस पेपर में, what have you written in that paper, so that आप decipher कर पाएं as to what all are the areas जहाँ पे मुझे problem हुई और किस type की problem हुई. This analysis becomes very important so that it will create a baseline for ourselves. ठीक है? इसमें आप ये देखेंगे कि अगर कंटेंट का प्रॉब्लम था किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, कंटेंट था बट सब्सटेंसिएशन का प्रॉब्लम था, एग्जाम्पल्स नहीं थे, डेटा नहीं था, एटसेट्रा एटसेट्रा, या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, या कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े ही नहीं थे. सो दिस काइंड ऑफ असेसमेंट दैट कैन बी डन. सो ये तो उन लोगों की बात हो गई जिन्होंने मेंस लिखा है ऑलरेडी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल अमंग अस विल बी हु हैव रिटन मेंस दिस ईयर. एट द सेम टाइम जो लोगों ने मेंस नहीं लिखा है उनके लिए क्या असेसमेंट करना है? Sit down with the syllabus once, try to understand what all areas have you already touched upon and what all areas are completely left out. ठीक है, कुछ एरियाज में आपके पास अच्छे नोट्स भी होंगे, कुछ एरियाज में आपके पास अच्छा वैल्यूडेशन या सब्सटेंसिएशन भी होगा और कुछ एरियाज में नहीं भी होगा. सो लेट्स जस्ट जॉट डाउन थिंग्स कि यार ये एरियाज मेरे वीक हैं और ये एरियाज मेरे स्ट्रॉन्ग हैं. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस? ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हमारा शेड्यूल है, you will see the schedule is quite fairly liberal, as liberal as it could be, जिसमें हमें 100 days में पूरा प्रोग्राम आंसर राइटिंग कंप्लीट करनी है before moving on to prelims preparation. So in that, whatever area you are weak in, you can put more effort during those days. Whatever area you are good at, right, you can utilize that even better. उसमें आप अपना optional additionally ज़्यादा पढ़ सकते हैं, so on and so forth. And whenever you come upon the area जो आपका weak है, वहां पे यू विल बी मोर अलर्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यूएशन विद एवरी सेशन एज वेल. दैट इज द आइडिया. ठीक है, पढ़ना कैसे है? आंसर राइटिंग में क्या चाहिए होता है? आंसर राइटिंग में द वेरी फर्स्ट थिंग, वुड एनीबडी वांट टू टेल मी आंसर राइटिंग में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट?
Anyone online? No. आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास कंटेंट होना चाहिए सबसे पहले तो. इफ यू डोंट हैव द कंटेंट ओनली, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द आंसर? जितना भी आप कोशिश कर लो, आप एक एवरेज आंसर तो लिख दोगे, बट सिर्फ एवरेज आंसर्स लिख के काम नहीं चलेगा. हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर एक 20 के 20 आंसर ही अच्छे लिखने हैं. नन ऑफ द पीपल हु अपेयर फॉर दिस एग्जाम कैन एक्चुअली डू इट. इवन रैंक वन वुड नॉट बी एबल टू डू इट. क्योंकि अगर सारे ही आंसर अच्छे लिख दोगे तो यू विल इजीली स्कोर 140 150 इन एवरी जीएस पेपर, विच वी हैव नॉट सीन इन द लॉन्गेस्ट टाइम. वंस यू हैव द कंटेंट, उस कंटेंट को कैसे पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बस रट लो, और कैसे उसको प्रिपेयर करके रखना है. ये दोनों चीजें आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? कंटेंट में कैसे हेल्प होगा? अब जैसे एथिक्स का ही बात करें, हमने वैल्यूज पढ़ी, हमने फीलिंग्स पढ़ी. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर सिंपली जॉटिंग डाउन कि भाई फीलिंग्स होती हैं आपकी हैप्पीनेस, फीलिंग्स होती हैं आपकी फियर, सरप्राइज, disgust, etc. So what we'll do, we'll read the definition of that कि भाई this is the meaning of happiness, right? A feeling of elation, this and that. उसमें आप एक दो अपनी लाइफ के एग्जाम्पल भी लिख देंगे कि I was very happy when I cleared this exam, I was very happy when I did this, when I did that. Yes, but in the end, जब आप एग्जाम में जाएंगे, यूपीएससी क्या पूछेगा? यूपीएससी पूछेगा, यूपीएससी will not ask what is happiness. ये नहीं पूछेगा. वो पूछेगा what does happiness means to you. That is what UPSC is going to ask you. अब प्रॉब्लम क्या है? While I know the definition of happiness, while I have the example of happiness in my life, but when it comes to a question, what does happiness means to me, वहीं पे हाथ पैर फूल जाएंगे हमारे. It will take a lot of time for us to think first of all कि यार कैसे शुरू करूं, क्या लिखूं and all that. So all this thought process, right? This has to be built during the content preparation. So over the next 3 months, the timeline that has been shared with you, what becomes important is कि आप उस timeline को adhere करें and you try to build content as and when we are scheduling it as such, right? जैसे for example 18th को हमारा पहला session है, so starting today you are expected कि ethics का पहला unit which is ethics and human interface, आप उसको thoroughly पढ़ के ready रखेंगे, right? और उसमें क्या क्या आप डायमेंशंस देख सकते हैं, कहां से देखें? तो सबसे पहले तो कंटेंट जो भी आपका सोर्स है आप उसको देखेंगे, बेसिक आइडिया सिलेबस वगैरह को लेके. देन यू विल अप्लाई लॉजिक. अब जैसे वैल्यूज पढ़ रहे हैं तो भाई कितनी टाइप की वैल्यूज होती हैं? यू हैव जॉटेड डाउन ऑल द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट आर देयर. इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, दिस एंड दैट. बट देन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार वैल्यूज क्या एक ही टाइप की होती हैं? कैन देयर बी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज? नॉट जस्ट द पॉइंट्स, नॉट जस्ट द एक्चुअल वैल्यू, बट फॉर एग्जाम्पल कि एक कोर वैल्यू होती है, कुछ वैल्यूज मेरे लिए बहुत डियर है, ये तो मैं मान के ही चल रहा हूँ, बट देयर आर सर्टेन वैल्यूज दैट कैन बी चेंज्ड आल्सो ओवर टाइम विद मी कि भाई एक चीज अभी तक लगता था मुझे, हाँ आई लाइक दिस, बट दूसरी किसी ने और समझाया, समथिंग वाज एक्सप्लेन टू मी बेटर, देन आई रियलाइज कि नहीं यार ये दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक वाज रॉन्ग एंड नाउ आई शुड थिंक अदरवाइज. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो हैपन. तो क्या सारी वैल्यू का एक ही वेटेज है? नहीं, राइट? सो यू हैव टू सी कि भाई कुछ कोर वैल्यूज होती हैं और कुछ वेरिएबल वैल्यूज होती है. तो ये भी पढ़ने की जरूरत है. इनफैक्ट इसी बार क्वेश्चन आया कि करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ कोर वैल्यूज. तो वो कोर वैल्यूज क्या है? वैल्यूज तो पता है, अब वहां कोर वैल्यूज नहीं पता है. वील एंड अप राइटिंग जनरली कि ये वैल्यू, वो वैल्यू, वो वैल्यू, बट क्या वो एक्चुअली कोर वैल्यू थी? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. सिर्फ लॉजिक से ही नहीं, PYQ also helps you a lot in understanding the dimensions through which you have to prepare the topic. कि यूपीएससी ने किस टाइप से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सवाल पूछ लिए. सो व्हाट विल आल्सो गिव यू गोइंग फॉरवर्ड इज यूनिट बाय यूनिट जो भी पिछले 10 साल में PYQs आए, राइट? वील लिस्ट देम डाउन टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट, वील सेंड इट अक्रॉस सो दैट यू अंडरस्टैंड जब मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं मुझे क्या क्या डायमेंशंस टच अपॉन करनी है. अब हैप्पीनेस आपने पढ़ा, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू? यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट कि यार फियर का भी क्या मीनिंग है मेरे लिए. व्हाट इज एक्चुअली फियर? क्या फियर सिर्फ वो है जो रियल मैनिफेस्टेशन है कि यार अंधेरा दिखा तो डर गया? और फियर ऑफ फेलियर,
personal failure or fear of failing somebody can also be a fear to me. तो थोड़ा सा फिलोसफिकल सब्जेक्ट है एथिक्स की, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो उसमें थोड़ा सा फिलोसफिकल होने की जरूरत भी है. थोड़ा सोचिए. इट इज एथिक्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू अदर जीएस सब्जेक्ट्स, जहां पे आप रट लेते हैं चीजें कि हाँ यार ये पॉइंट्स और डायमेंशन मुझे पता है तो आई एम ओके. इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है. एंड एथिक्स में स्पेशली क्यों? बिकॉज वी कैन एक्चुअली स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स. एथिक्स में सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है, आपका 70 मार्क्स भी आते हैं, एथिक्स में आपके 140 मार्क्स भी आते हैं. सो दिस वेरिएशन इज ओनली बिकॉज या तो आप सिर्फ रट के बैठे हैं तो आपके मार्क्स कम आएंगे, अगर आपने समझा है, आप चीजों को एसोसिएट कर पा रहे हैं टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ और अराउंड यू, देन यू विल बी एबल टू कम अप विद गुड एग्जांपल्स, यू विल बी एबल टू कम अप विद गुड आंसर्स. अभी हम बात करेंगे डिटेल में धीरे धीरे किस टाइप से. राइट. सो सबसे पहले तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में. सो यू हैव टू बिल्ड दैट कंटेंट एंड लेट्स यूटिलाइज द नेक्स्ट 100 days टू बिल्ड दैट कंटेंट इफ यू डोंट हैव इट ऑलरेडी. ठीक है. वील कीप ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग कैसे कैसे हम कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं थ्रू पीवाईक्यूज. वील ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Once you have the content, what is the second most important aspect to understand? The moment you see the question, you have to first decipher the demand of the question. कि demand exactly क्या है. More often than not, what happens is हम वो लिखते हैं जो हमें आता है, rather than exactly what is asked. Right? If there is a question कि भाई पंचायती राज, for example, GS2 का question लेते हैं, that पंचायती राज has failed or has been instrumental either way in ensuring women empowerment or has failed in ensuring women empowerment, let's say. तो उसमें what kind of challenges are you going to write? Yes. So generally हमें पंचायती राज या local bodies में क्या पता है? 3 चीजें पता है भाई. lack of funds, function and functionaries. We'll end up writing all that in general जो देखा गया है. But this is not what you have to do. और वो हम फिट भी कर देंगे कि भाई lack of functionaries हैं कि women functionaries नहीं है इसलिए empowered नहीं हो पा रही है. लैक ऑफ फंड्स हैं तो वुमेन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो पाता है या वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड स्कीम्स नहीं चला पाते हैं इसलिए प्रॉब्लम है. राइट. तो इस टाइप की चीजें ना लिख के हमें बहुत स्पेसिफिक कि वुमेन पार्टिसिपेशन आपका पंचायती राज में कैसे पैट्रियार्की, क्योंकि ये सोसाइटी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसमें दोनों डायमेंशन अलग अलग हैं. अगर ये सोसाइटी में आएगा तो क्या लिखूं, अगर ये पॉलिटी में आएगा तो क्या लिखूं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस ओवर देयर. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चलिए अभी बताता हूं उसका मैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड. देयर विल बी 2-3 लाइंस इन अ क्वेश्चन. सो द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग अ क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स कि मुझे क्या क्या चीजें एड्रेस करनी है. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल एथिक्स का अगर क्वेश्चन लेते हैं, दैट wise people will always doubt the health and progress of a society which fails to develop a number of eccentrics during its time. Right. In light of the above statement, highlight how does eccentrics क्या कहते हैं helps cater to the or helps beat the ethical blindness, culturally induced ethical blindness in the society. इस टाइप का एक क्वेश्चन है. So what does people do in this? The first part that was there, that wise people will doubt the health and progress of the society that fails to develop a number of eccentrics in the society at a given point of time. इसको हम सिर्फ एक contextual चीज मान के छोड़ देते हैं and we directly jump on to how eccentrics helps beat the culturally induced ethical blindness in the society. So I have seen multiple answers on this particular question. None of the student except for probably 1 or 2 have addressed the first part कि भाई why in the first place will wise people raise doubts about the health and progress of the society if it fails to produce a number of eccentrics. Eccentrics कौन होते हैं? Eccentrics होते हैं आपके जो out of the box सोचते हैं, जो status quo को challenge करते हैं, people who challenge the status quo. So after writing कि भाई eccentrics ये लोग होते हैं, I would want to first address the first line that is given over there, that wise people will doubt the society because if there are no eccentrics in the society, that reflects that the society is a conformist kind of a society because it does not appreciate somebody challenging the status quo. Yes, तो ये 2 लाइन भी लिखने से हम क्वेश्चन को बेटर एड्रेस कर पा रहे हैं. And then we come on to the part wherein how eccentrics would help remove the culturally induced ethical blindness. So demand को meet करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. We'll demonstrate question by question after that, right? कि कैसे कैसे हमें break down करना है, कहाँ पे आप demand miss कर जाते हैं, कहाँ पे आप demand address करना है आपको additionally.
Another advantage of addressing the demand like this is that you will have enough and more to write in your answer. अक्सर you fail to find points to finish your answer, especially if it is a 15 marker. So what happens there is कि अगर आप एक part address ही नहीं कर रहे हो, thinking कि ये part तो address नहीं करना है, तो in that what will happen? आपके पास points ही नहीं रहेंगे because आप एक छोटा सा part address करने की कोशिश कर रहे हो and you're trying to come up with all the random points that are there. So understanding the demand in that manner कि बहुत सारे aspects हैं जो मुझे address करने हैं, that helps you write a better answer, that helps you think lesser, क्योंकि आपके पास already different points हैं to think about. एक ही point पे 10 point नहीं सोचने आपको. That helps there. चलिए, then once you have the demand, what is the next thing that is important? Once you understand the demand, you have to start presenting it better. You have to also keep in mind the timeline and everything. ठीक है? सो डिमांड समझने के बाद कि डिमांड तो समझ में आ गई, इसके बाद आपको जो कंटेंट ऊपर पड़ा है उसको आपको पहले रिकॉल करने की जरूरत है. और ये रिकॉल कैसे होगा? ये रिकॉल तब होगा जब हम यहां पे याद करेंगे चीजें बार बार थ्रू एक्टिव रिकॉलिंग. सो मेक श्योर वट एवर यू आर रीडिंग एवरी डे, यू ट्राई टू रिवाइज इट फर्स्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड मेनी ए टाइम्स रिवाइजिंग शुड नॉट बी एन ओपन एंडेड रिविजन ऑफ सॉर्ट्स. Many times you have to see the context कि आप जिस context में रिवाइज कर रहे हैं. अगर आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, लेट्स से आपने एग्रीकल्चर का टॉपिक उठाया, उसके अंदर आपने पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग का टॉपिक उठाया GS3 का, तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड 4-5-6 क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में आए हैं, पिक इट अप, कीप इट ऑन योर साइड व्हेनेवर यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग. सो करस्पॉन्डिंगली जब भी आप फूड प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से याद होना चाहिए चीजें कि यार ये क्वेश्चंस पूछा था तो आई शुड बी रिमेंबरिंग food processing in this context कि how can food processing benefit the farmer. अगर question है तो your understanding should be सिर्फ general नहीं कि food processing के advantage ये सब है, but food processing के advantages कैसे farmer को advantage provide कर रहे हैं. You have to learn it and you have to remember it like that. अब जैसे हम लोग बोलते हैं अक्सर और जनरली चलता है कि भाई कंक्लूजन वगैरह में SDGs लिख डालो, कंक्लूजन वगैरह में DPSP लिख डालो. Yes, often this happens, but then what will happen? आप prelims में तो सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि हमें वो SDG याद तो हो. All the SDGs you should have by heart. Secondly, when it comes to recalling, क्वेश्चन की डिमांड समझने के बाद कि भाई पॉवर्टी पे क्वेश्चन है या हेल्थ पे क्वेश्चन है या एनवायरमेंट पे क्वेश्चन है, इट शुड डायरेक्टली कनेक्ट इन योर हेड कि अच्छा पॉवर्टी पे क्वेश्चन है तो मैं SDG 1 लिख दूं. अगर हेल्थ पे क्वेश्चन है तो आई हैव टू राइट SDG 3. सो द मोमेंट यू आर रीडिंग द कीवर्ड कि किस चीज पे क्वेश्चन है, इट शुड ब्लिंक इन योर हेड कि कौन सा SDG मैं यहाँ लिख सकता हूँ. सो जब आप प्रीलिम्स में SDG प्रिपेयर कर रहे हो तो यू आर जस्ट क्रैमिंग कि अच्छा SDG 1 में ये है, SDG 2 में ये है, SDG 3 में ये है. या DPSP अगर आप याद कर रहे हो तो आर्टिकल 48 ये है, 49 ये है, 50 ये है. But when you are remembering it for answer writing purposes, understand people, you have to relate and remember कि अच्छा पॉवर्टी में कौन कौन से SDG लिख सकता हूं, ऐसे याद करना है, बैकवर्ड याद करना है. या हेल्थ रिलेटेड कौन कौन से SDG लिख सकता हूं, एजुकेशन रिलेटेड कौन कौन से SDG लिख सकता हूं. दिस शुड बी रेडी इन योर हेड. सो द मोमेंट यू सी अ क्वेश्चन जिसमें डिमांड है एजुकेशन रिलेटेड, तो आई शुड इमीडिएटली कम टू द SDG जो एजुकेशन रिलेटेड है, रादर देन सोचना कि अच्छा यार कौन से SDG में क्या था. DPSP में भी यही कहानी है कि अगर आपका एग्रीकल्चर में ही अगेन लेट्स से एनिमल हस्बेंड्री पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इमीडिएटली चमकना चाहिए कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड DPSP कौन सा है, लेट्स से आर्टिकल 48. So it should come immediately to your head. So whenever you're remembering and revising things, it is essential that you reverse engineer and try to remember and revise things in this fashion ताकि ready material आपके mind में आए. ऐसा नहीं है कि सोचना पड़े बैठ के, because सोचने का प्रॉब्लम जब हो जाएगा तो वहां पे आपका एक टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा. आई विल राइट टाइम मैनेजमेंट, बट उससे पहले एक पॉइंट और है. सो द मोमेंट यू are able to remember the content that you have read after you understood the demand, अब आपको समझना है कि मुझे उसको पेपर पे कैसे उतारना है so that it looks better. Yes, so that is where the role of presenting your answer comes into play. आपको अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ऐसा नहीं कि मुझे इन्फॉर्मेशन तो है and I have just dumped it on the piece of paper, which we see a lot in a lot of answers that people write कि सर सब लिख दिया है, जो आपको समझ में आए वो ले लो. अंडरस्टैंड, थ्रू दिस यू आर पुटिंग द एग्जामिनर थ्रू अ लॉट ऑफ एफर्ट.
जिसमें वो नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा, वो कहेगा छोड़ो इतना एफर्ट मुझे नहीं मारना है. So we need to make sure that whatever we are able to recall, we are able to present it also better in a nice and neat manner, right? We will take some examples of those as well कि कैसे हम better presentation कर सकते हैं. There is always a possibility कि आपकी handwriting अच्छी नहीं है. जिसकी handwriting अच्छी होती है उसको एक general advantage तो है ही, because उसकी copy already clean लगती है. But many a times आपकी handwriting अच्छी नहीं होते हुए उसको copy को कैसे clean बनाए, I'll give you samples of that as well. तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ हैंडराइटिंग खराब होने से कॉपी गंदी लगे ऐसा नहीं, खराब हैंडराइटिंग में भी कॉपी साफ कैसे लगे, वी कैन इंश्योर दैट. अब इस प्रेजेंटेशन में यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मेकिंग सम डायग्राम्स, you can also think of making some maps, provided the diagrams and maps are doing justice to the answer or to the question. You can also make some flowcharts. ये सब भी हम सीखेंगे कि कैसे क्या करना है हर एक चीज में. Now once all this is done, you have to ensure that all this is happening in the given time frame. यहां पे एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. We have around 3 hours. Understand this? Yes. There is a very क्या कहते हैं, how do I put it, popular thing going on कि यार रोज का एक दो आंसर लिख देते हैं, 1-2 answers per day. Yes. I have always maintained कि दिन का एक दो आंसर लिखने से कुछ नहीं होता है. You have to understand first of all कि आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं. आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस दो लोग सोचते हैं कि दो पर्पस है. फर्स्ट, आई नीड टू राइट अ बेटर आंसर. यस, माई आंसर शुड लुक गुड, माई आंसर शुड हैव ऑल द कंटेंट. एंड सेकंड, आई नीड टू फिनिश माई आंसर इन टाइम. बट व्हाट हैपेंस इन जनरल व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ 3 hour टेस्ट, आर यू फोकसिंग ऑन आई नीड टू राइट अ बेटर आंसर? नो, यू नॉट. What are you focusing on? You're focusing on I need to finish my answer or finish my paper in the stipulated time limit. सो ये करने, जब आप पेपर लिखते हैं या जब आप कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्राइम फोकस आपका टाइम मैनेजमेंट पे होता है. और आंसर राइटिंग का एक्चुअल पर्पस है टाइम मैनेजमेंट रादर देन राइटिंग अ गुड आंसर. राइटिंग अ गुड आंसर कब होता है? टेस्ट लेने से पहले. यस, एंड वंस यू हैव रिटन द टेस्ट, उसके बाद ड्यूरिंग द टेस्ट यू डोंट फोकस ऑन कि मैं अच्छा लिख रहा हूं या बुरा. यू जस्ट राइट. आपने देखा होगा अक्सर वो यू जस्ट राइट, वो नेचुरली अच्छा कैसे हो जाए वो टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद की एक्टिविटी है व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग ओवर हियर, ताकि नेक्स्ट टेस्ट नेचुरली थोड़ा अच्छा लगे जब आप लिख रहे हैं. डोंट एक्सपेक्ट कि पढ़ते लिखते लिखते आप सोचेंगे कि यार इसको बेटर कैसे प्रेजेंट करूं मैं. दैट विल हैपन व्हेन यू प्रैक्टिस 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 बिफोर द टेस्ट. दैट विल बिकम अ नेचुरल थिंग, दैट विल कम इनटू द पेपर ऑटोमेटिकली. नहीं तो उन 3 घंटों में सोचने की तो फुर्सत ही नहीं है कि उसको लिखूं कैसे, ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं. सो अंडरस्टैंड, जब आप 3 घंटे में आंसर लिख रहे हो, 20 आंसर्स लिख रहे हो, दैट मीन्स आपको हर कुछ मिनट बाद यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट. तो अगर आपके पास 20-25 मिनट हैं जब आप एक दो आंसर लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग एन आंसर इन 20-25 मिनट्स, एनीबडी कैन राइट अ गुड आंसर. एनीबडी कैन राइट अ गुड आंसर. आप आराम से सोच के पूरी तसल्ली से लिख रहे हो, क्या ही फर्क पड़ता है. बट डज इट मैटर? डज इट काउंट? इट डज नॉट. सो माई आइडिया जनरली इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग 1 or 2 आंसर पर डे, क्योंकि हमारा फोकस आंसर राइटिंग पे ये है कि जो भी मैंने अब तक सीखा है, विल आई बी एबल टू फिनिश इट विद इन द गिवन टाइम पीरियड नॉट. सो उसके लिए कम से कम आप 5 आंसर या 10 आंसर तो एक सीटिंग में लिखें. देन बिकॉज एक दो आंसर के बारे में शायद आप रिकॉल करके सोच भी लो, बट एग्जाम में यू हैव टू थिंक बैक टू बैक 20 टाइम्स. वो कैसे होगा? वी नीड टू प्रैक्टिस दैट. इट इज क्वाइट एग्जॉस्टिंग एंड नॉट जस्ट फॉर वंस. यू हैव टू डू इट in the second slot also, then you have to do it the very next day also when it comes to GS 1 2 3 4. So it becomes very essential कि आप एक दो आंसर लिखने की हैबिट छोड़ दीजिए. इंस्टेड आप 2-3-4 दिन में एक बार 10 आंसर लिखो, बात एक ही है. उतने ही आंसर लिख लोगे, इनफैक्ट उससे ज्यादा लिख लोगे, बट दिस विल बी मोर इफेक्टिव. सो यू हैव टू राइट दैट. ऑल्सो अनदर थिंग इज इन टाइम मैनेजमेंट इज देयर इज अ जनरल आइडिया कि भाई 10 मार्कर अगर होता है तो वी हैव टू फिनिश इन 7 minutes. 15 मार्कर अगर होता है तो you have to finish in 11 minutes, right? More often than not, what do people do? People try to finish every answer in 7 minutes or every 15 marker in 11 minutes. हमें प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में करनी है दोस्तों. That is why I am discussing all this today.
It is impossible in the paper that you keep checking your watch after every 7 minutes if my answer is complete or not. And it is impossible for you to turn the page after every 7 minutes also. एग्जाम में जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप मिनट बाय मिनट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप घंटे के हिसाब से करते हैं. या तो आप 3 घंटे 1+1+1 लेंगे. सम पीपल ऑल्सो टेक 1.5+1.5 कि भाई फर्स्ट हाफ में कितना कर लिया और सेकेंड हाफ में कितना कर लिया. वाई? बिकॉज सिंपल सी बात है यार, यू कैन नॉट बी स्पेंडिंग एग्जैक्ट 7 मिनट्स ऑन एवरी आंसर. सम आंसर्स माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम, सम आंसर माइट टेक अ लिटिल लेस टाइम. तो उस चीज को लेके स्ट्रेस आउट करोगे तो काम नहीं चलेगा. सम पीपल ऑल्सो से कि यार मैं बहुत ज्यादा फोकस करके करता था कि अगर पहले आंसर में 9 मिनट लग गए तो आई विल मेक श्योर दैट द सेकंड आंसर आई एम फिनिशिंग नॉट इन 7 बट इन 5 मिनट्स, ताकि वो कैरी फॉरवर्ड ना हो पाए. बट व्हाट आई हैव जनरली सीन एंड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो व्हेन आई यूज्ड टू राइट मेंस कि इतना तो फुर्सत नहीं मिलता है कि मैं हर एक आंसर पे टाइम देख पाऊँ कि 7 मिनट लगे या 9 मिनट लगे, अच्छा 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो अगला मुझे 5 मिनट में खत्म करना है. थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू दैट. इट इज नॉट इवन डिजायरेबल रियली. सो यू हैव टू ब्रेक योर अटेम्प्ट इनटू स्लॉट्स. या तो एक एक घंटे के 3 स्लॉट बनाइए या 1.5 घंटे के 2 स्लॉट बनाइए कि पहले 1 घंटे में कितना कर लिया, हाउ मच डिड आई डू इन द फर्स्ट 1 आवर, फिर दूसरे 1 घंटे में कितना कर लिया, फिर तीसरे 1 घंटे में कितना कर लिया. यस, देन अकॉर्डिंगली यू फिनिश द पेपर. सो यू हैव 10+10 क्वेश्चंस, 1 to 10 एंड 11 to 20. इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट. नाउ देयर आर मल्टीपल वेज टू गो अबाउट इट. वन इज पीपल, एक जनरल आइडिया है कि भाई पहले मैं 11 to 20 करूंगा और फिर मैं 1 to 10 करूंगा. एक दूसरा आइडिया है कि आई विल डू 1 to 5 फर्स्ट, देन आई विल मूव ऑन टू 11 to 20, देन आई विल मूव ऑन टू 6 to 10. ये भी एक आइडिया है, ठीक है. एंड देन एक आइडिया ये है कि भाई पहले जो आते हैं वो कर लो क्विकली एंड देन डू द रेस्ट. सबके अपने अपने आइडियाज हैं. देयर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच इन दैट. किसी को इसमें कंफर्टेबल लगता है कि यार पहले 11 to 20 कर डालो और फिर 1 to 10 कर डालो. किसी को इसमें कंफर्टेबल लगता है, मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता था, ये मेरा आइडिया था. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये फॉलो करना है. So what happens when you do what you know, you can do things faster क्योंकि आपको आते हैं. Yes. और जो नहीं आते उसमें anyway टाइम कम देना है आपको. अगर आप उसको बीच में करते हैं तो अक्सर you end up spending a lot of time there. आपके पास कंटेंट है भी नहीं, आप कोशिश कर रहे हो बिल्ड करने का कंटेंट वहां बैठ के, सोचने का कंटेंट वहां बैठ के, और आप यू फॉरगेट कि कितना टाइम पास हो गया. तो मैंने, और उसमें कोई बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं मिलते हैं बिकॉज यू आर एनीवे गोइंग टू राइट अ एवरेज आंसर. सो यू कैन ऑलवेज डू दिस एज वेल. बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर कि 11 to 20 पहले करेंगे, 15 मार्कर्स, फिर 1 to 10 करेंगे. इसमें देयर इज अ डाउट दैट पीपल हैव, कॉन्ट्रेरी टू द परसेप्शन कि सर पहले आंसर्स अच्छे होने चाहिए, पीपल से इट मेक्स एन इंप्रेशन, दिस एंड दैट. यस, इफ यू थिंक लाइक दैट कि भाई हाँ ऐसा इंप्रेशन हो सकता है, बट अनलाइकली है. व्हाई? बिकॉज द वे कॉपीज आर चेक्ड, 1% जितना, अगेन ये भी एक जनरल आइडिया है, नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ कॉपीज आर चेक्ड, या थोड़ा बहुत जो पता चलता है. 1% विल नॉट चेक योर एंटायर कॉपी. सेक्शन वाइज कॉपीज आर चेक्ड. ज्योग्राफी का पार्ट कोई चेक कर रहा है, हिस्ट्री का पार्ट कोई चेक कर रहा है, सोसाइटी का पार्ट कोई चेक कर रहा है. सो 1 कॉपी इज पास थ्रू 3-4 people and they sit together and try to finish the copy checking in one go only. तो in that case it does not really matter कि क्वेश्चन नंबर 1 किसके पास है. अगर ओवरऑल आंसर्स अच्छे लिखे हैं या पहले 2-3 अच्छे नहीं लिखे हैं और उसके बाद अच्छे लिखे हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट, उससे फर्क नहीं पड़ता है इस बात का. सो दिस हेल्प्स यू मैनेज टाइम बेटर, तो ये करिए. दिस हेल्प्स यू मैनेज टाइम बेटर, तो ये करिए. और थर्ड हेल्प्स यू मैनेज टाइम बेटर, तो ये करिए. उसके लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे वाइल टेकिंग टेस्ट्स. ठीक है. बी ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग. वट एवर सूट्स यू बेस्ट, स्टार्ट फॉलोइंग दैट. जस्ट डोंट फॉलो समथिंग बिकॉज समबडी सेड इट. एक बार तो अपने आप जरूर एक्सपीरियंस करके देखना ही है हमें. दैट इज द की पॉइंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो वंस यू हैव द डिमांड एंड द कंटेंट सेट, दैट मेक्स द फाइनल टाइम मैनेजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो उसको हमें जरूर ध्यान में रखना है. अब इसमें आप देख सकते हो, अगर 1-1 घंटे के स्लॉट बनाए हैं तो पहले 5 क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि नर्शिया भी होता है, 40 या 45 मिनट्स में कर लो. अक्सर
7 मिनट्स के हिसाब से 1 to 5 शुड आइडियली टेक 35 मिनट्स, बट क्योंकि फर्स्ट 1 आवर है, थोड़ा सा नशे रहता है, कोशिश करो 40 मिनट्स में करने का, नहीं तो 45 मिनट्स में कर लो। उसके बाद आराम से जो आप 11 to 20 कर रहे हो, इसमें आपको 11 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहा है, तो यू हैव अराउंड 110 मिनट्स। तो उसको आपको कम से कम आपको करना रहेगा 1 hour 50 मिनट्स में, समथिंग लाइक दैट। तो 110 आपके यहाँ पे हो जाते हैं। एंड देन द लास्ट क्वेश्चंस कैन बी डन इन 30 मिनट्स और सो, 30 odd मिनट्स। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू शुड आइडियली प्लान, अगर आप ये वाला फॉलो कर रहे हैं, राइट। देन कम्स द फर्स्ट पार्ट, उसमें आप देख ही सकते हैं आराम से कि अगर पहला आप 1 hour 50 मिनट्स में कर पा रहे हैं या 1 hour 40 मिनट्स में करने की कोशिश कर रहे हैं, देन द लास्ट 10 क्वेश्चंस आप बहुत आराम से 70-80 मिनट जो आपके बचे हैं, आपका पेपर जनरली पूरा हो जाएगा। तो यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द आंसर राइटिंग पार्ट। आंसर राइटिंग में 3 पार्ट होते हैं। यस, सो देयर इज अ इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, and then conclusion. Now there will be a lot of people who will claim कि भाई intro के इतने नंबर होते हैं, body के इतने नंबर होते हैं, conclusion के इतने नंबर होते हैं, and many a times you will see some people evaluating also copies like that। उसमें आपका एक वो evaluation framework भी लिख के दे देते हैं कि भाई intro अच्छा लिखा है तो 3 नंबर में से काउंट होगा, conclusion अच्छा लिखा है तो 2 नंबर में से काउंट होगा, and body 5 नंबर में से काउंट होगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, right? Nobody knows honestly how copies are checked in the UPSC। It is like one of the best kept secrets kind of a thing। किसी को नहीं पता है कि इंडिविजुअल मार्क्स किसके कितने हैं और हैं भी या नहीं है। यस, बट एक जनरल कंसेंसस क्या हो सकता है? एक जनरल कंसेंसस है कि बॉडी अमंग ऑल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, बॉडी अमंग ऑल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज मेनी a times when you listen to toppers also जो सेलेक्ट हुए हैं एंड ऑल दैट, जिनका स्कोर अच्छा आया है, इन पॉसिटिव ऑफ टाइम व्हाट डू दे जनरली डू? वो इंट्रो छोड़ देते हैं, कंक्लूजन छोड़ देते हैं लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में, और सीधा बॉडी के पॉइंट्स लिख के आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग द पेपर, एंड इवन देन दे गेट सिलेक्टेड। सो डिमांड जो क्वेश्चन की है, एज फार एज यू एड्रेस दैट, अगर आपने गलती से बाद में ड्यूरिंग इन पॉसिटिव ऑफ टाइम इंट्रो कंक्लूजन नहीं भी लिखा तो भी आपको अच्छा खासा स्कोर मिल जाता है। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस जो हमें करना है वो कंटेंट बिल्डिंग पे करना है, एंड आंसर राइटिंग बिल्डिंग की अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि अगर इन केस आई डोंट हैव स्पेसिफिक पॉइंट्स टू राइट, आई हैव नॉट कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं कैसे आंसर अच्छा बना लूं। तो वो भी हम फोकस करेंगे इन द जनरल आंसर राइटिंग सेशन दैट वी आर गोइंग टू डू। सो बॉडी के बाद इट इज द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आई विल गिव यू अगेन, एथिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एथिक्स में यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ वेज टू स्टार्ट एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है वहां पे, और वहां पे क्रिएटिविटी लग जाती है। बट फॉर ऑल द 3 other GS पेपर्स वी कैन easily find out 5-6 ways to start an introduction, and we can easily find out 3-4 ways to end a conclusion with it. Yes, so we are going to do that, we are going to learn that over time, so that is also essential to understand। introduction आराम से आप 4-5-6 तरीके का सोच सकते हैं, जैसा मैं हमेशा अपने सेशंस में बताता हूं, राइट। यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ डिफाइनिंग अ कीवर्ड, ये हम डिटेल में समझेंगे आगे, आज एक जनरल ओवरव्यू है। यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ डिफाइनिंग अ कीवर्ड, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन है, तो यू कैन स्टार्ट डिफाइनिंग गुड गवर्नेंस। यू कैन ऑलवेज, अगर कीवर्ड की डेफिनेशन नहीं फिट बैठ रही है या नहीं समझ में आ रही है या याद नहीं है एंड ऑल दैट, सो यू कैन ऑलवेज गो ऑन टू सम करंट न्यूज दैट वाज देयर, क्योंकि अक्सर यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन करंट न्यूज बेस पे आते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ करंट न्यूज पढ़ी होगी। अगर करंट न्यूज नहीं याद आ रहा है तो हो सकता है कुछ डेटा पॉइंट याद आ जाए, सो डेटा रिलेटेड हम कुछ पढ़ सकते हैं, राइट। एंड अदरवाइज डेटा भी याद नहीं आ रहा है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कि हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, कि एवोल्यूशनरी आइडिया दे दें। अक्सर हम एक कॉन्टेक्स्ट की भी बात करते हैं, आई मिस्ड इट ओवर हियर, कि कॉन्टेक्स्ट जो क्वेश्चन में सेट हो रहा है, हम कॉन्टेक्स्ट की भी बात कर सकते हैं। वील डेमोन्स्ट्रेट इन आवर जनरल आंसर राइटिंग सेशन कि कैसे कैसे हम डिफरेंट, हर एक आंसर का वील ट्राई
कि हम 3 से 4 इंट्रोडक्शन तो बनाएं यहाँ पे बैठ के, राइट? एंड देन फाइनली, ऑल्दो दैट इज जनरली यूज्ड फॉर कंक्लूजन पर्पसेस, तो एक फ्यूचर आउटलुक टाइप, ठीक है, फ्यूचर आउटलुक टाइप कि लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई क्वेश्चन आ गया और मेरे पास कोई डेटा याद नहीं आ रहा है, मुझे, मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूं, तो फ्यूचर ओरिएंटेशन की यार, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम दैट मस्ट बी रिजॉल्व इमीडिएटली अनलेस और इफ नॉट रिजॉल्व इट विल लीड टू distress in the society or loosening of the or weakening of the social fabric, and then you can start. Ideally I would write this in conclusion, I would never write it in an introduction. बट अगर इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं चमक रहा है वर्स्ट केस सिनेरियो, तो कंक्लूजन बचा के क्या करोगे, है ना? लेट्स क्विकली राइट समथिंग इन स्टार्ट, वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, राइट? एंड देन वील थिंक ऑफ अ कंक्लूजन व्हेन वी गेट देयर. नहीं भी लिखेंगे चलेगा, सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती है कि इतना याद ही नहीं आ रहा है कुछ इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, बट मोस्टली हम इसको कंक्लूजन के लिए रखेंगे. इफ वी प्रैक्टिस इनफ, ये नौबत नहीं आएगी कि हमें इस पॉइंट तक आना पड़े. वही सारा गेम है अगले 3 महीने कि कैसे हम इतना प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन पे वी अप्लाई दिस फ्रेमवर्क टू कम अप विद 2-3 इंट्रोडक्शंस ऑटोमेटिकली. और ये आपको हर क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें करने की कोशिश करनी है, ठीक है? देन कम्स द कंक्लूजन पार्ट. व्हाट डू यू डू इन अ कंक्लूजन? कंक्लूजन का क्या इंपॉर्टेंस है? एज आई से ऑलवेज, कंक्लूजन का इंपॉर्टेंस है कि यार एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है. यस, लेट्स से ये पेपर है, आपने इंट्रो लिखा है, आपने बॉडी लिखी है, सो एग्जामिनर इज चेकिंग योर कॉपी, और यहां कंक्लूजन है. एंड ही हैज सीन कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है. बट व्हेन विल ही गिव यू मार्क्स? ही विल गिव यू मार्क्स आफ्टर रीडिंग द कंक्लूजन. एंड में ही तो मार्क्स देंगे. 3 नंबर देने हैं या 4 नंबर देने हैं या 6 नंबर देने हैं. सो कंक्लूजन इज दैट पॉसिबिलिटी विच कैन सैल्वेज सम बिट ऑफ द सिचुएशन. अगर हमने ऊपर कुछ अच्छा नहीं लिख पाए या कुछ गड़बड़ हो गई हमारे से, अगर हम एक अच्छा कंक्लूजन लिख पाएंगे, सो इन द एंड वी कैन स्टिल ट्राई एंड चेंज द एग्जामिनर्स माइंड कि यार थोड़ा सा आधा नंबर एक्स्ट्रा दे दो या 1 नंबर एक्स्ट्रा दे दो. सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ये जो आधा और 1 नंबर का डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन यू गेटिंग इन और यू बेयरली गेटिंग इन और यू गेटिंग अ डिसेंट सर्विस. इस बार का कट ऑफ कितना था? इस बार का कट ऑफ था आई थिंक 959 या 960, सॉरी माय बैड. इस बार का कट ऑफ था 960. यस, सो इससे 1 नंबर कम जहां सिलेक्शन रुक जाएगा वो 959 है. और अगर हम हर आंसर में वो 1 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं या आधा नंबर भी मानो एक्स्ट्रा ला सकते हैं, तो 4 पेपर में 80 मार्क्स या 40 मार्क्स का गैप है, राइट? सो आधा नंबर पर क्वेश्चन भी अगर हम एक्स्ट्रा ले आते हैं एक बेटर कंक्लूजन लिख के, जितना हमने ऊपर लिखा वो सब तो अच्छा लिखा ही लिखा है, सो ये 959 कैन गेट कन्वर्टेड इनटू 999. सो यू हैव 40 मार्क्स अबव द कट ऑफ. You are very well placed somewhere in the top 200-300 ranks in that case. This is what we are going to develop over the next 3 months, right? कि एक kick-ass conclusion कैसे लिखें. और conclusion generally हम कुछ ऐसा कोशिश करेंगे, और जब एंड तक ला रहे हैं हम चीजों को और एग्जामिनर एंड में पढ़ रहा है, तो उसको एक फील गुड फैक्टर के साथ छोड़ना है, राइट? सो कंक्लूजन प्राइमरली शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव कंक्लूजन और अ फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, ठीक है? सो पॉजिटिव कंक्लूजन कि भाई इस चीज को रिजॉल्व कर देंगे तो इससे कितने सारे बेनिफिट हो जाएंगे, या फॉरवर्ड लुकिंग में या सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन भी दे सकते हैं हम कि भाई इन दिस रिगार्ड such and such committee recommendation should be implemented in order to get the best out of the situation, something like that. ठीक है? For example PDS पे या हाँ PDS पे है, so PDS पे finally conclude करते हुए you can always write that an efficient PDS system is essential for our country in order to uplift people out from the extreme poverty vicious cycle, right? In this regard, Shantaram committee's recommendation to bring about efficiency in our PDS will go a long way in achieving the dream of Amrit Kal or whatever. You can always write that. Yes? So all this can be done like this. तो ये करने की जरूरत हो जाती है. So conclusion कैसे हमारे 2-3 टाइप के हों, we are going to learn that over time. हर 3 दिन में 4 दिन में जब भी आपका सेशन होगा, we are going to discuss that. ठीक है? So this is the whole idea. Now, how is the session going to help us? Let me quickly open the
So if you see the detailed schedule that has been shared with you, अच्छा एक बात तो मुझे ये बतानी है कि there is a problem in this one of the dates. 24th October has been given as one of the date. We did not realize it's Dussehra. So this date will be moved either to 25th or 23rd. You will be intimated through email in that. So what will happen in this? The idea of this particular program is कि आपका content भी build हो पहले. So we have given decent enough time कि आपके पास 2 दिन है एक यूनिट आराम से पढ़ने के लिए. So you read ethics and human interface and human values. एक यूनिट आप आराम से 2 दिन पढ़ेंगे. इसमें you will try to understand things better. We will see कि first session में आपका कैसा response है. What kind of understanding you were able to build on your own. अगर उसमें gaps होंगे, I'll help you in that as well. Along with that, we'll give you a lot of value additions also. We'll give you a detailed list of examples that you can use in ethics. We'll give you case laws. We'll give you data for economics and society. We'll give you multiple examples here and there. And with every question that we are going to discuss in the class, we will also add a lot of value in those discussions. ठीक है, तो इसमें आपका कंटेंट भी साथ में रेडी होगा, बट एक बेसिक कंटेंट तो आपको खुद से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. So in this, what the program entails is basically from today you have 2 days to read this particular unit, ethics and human interface and human values. इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके 18th को आएंगे. In the morning at 10 a.m. you will be given to write 10 answers, जिसमें 5, क्योंकि ये ethics है तो इसमें all questions will be 10 markers only, but for all other GS it will be 5 10 markers and 5 15 markers. So you'll have 1.5 hours to write that. We just want to see based on your understanding what you write. Then you get a 10 minutes break, and then we are going to discuss all these 10 questions in the class in detail as to आपने क्या लिखा और क्या और लिखा जा सकता था. If you have written a good answer, then what is the other alternative? If you have not written a good answer, तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं. These discussions are also going to help you build those linkages जो आपको पढ़ते हुए डेवलप करने हैं. सो 1 2 3 सेशंस के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिंकेजेस बिल्ड करने हैं. अगर उसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगी, सो आई विल टेक सम एक्स्ट्रा सेशंस जिसमें आपको वो आपके लिंकेजेस भी बिल्ड कैसे करने हैं. We will try to understand that as well if it is required. So 18th को we'll come to the center, or people who are online, they will receive the test in their email IDs a night before, so that they can take a printout and everything and keep it ready. From 10 a.m. to 11:30 a.m. we are going to write 10 questions over here, and then we will discuss. I will come and we will discuss all these 10 questions as to क्या करना चाहिए था. Then we do the same thing between on 19th and 20th. We read attitude and aptitude, again small units only. We'll apply the learning of this particular session in this while reading things, and then we'll try to write better answers the next time, and so on and so forth. So once by 30th ethics is complete, you get 3-4 days aram se to revise ethics and take a full length test. This full length test is going to be checked very thoroughly, and you will get a 1-to-1 mentor session for all these full length tests that you're going to write, because we want to ascertain did you actually understand and are you able to implement whatever has been discussed in the previous 4-5 sessions. अगर वहां पे दिखेगा कि बहुत significant gap रह गया है, so we'll do some personal intervention एक एक बंदे की, and we'll try to help them improve the situation there and then. ठीक है, that is how it's going to work. Then on the 6th, again we'll jump on to GS2. इसमें GS1 का एक Indian Society का portion हम cover करेंगे. Again the purpose is कि mains oriented topics जितना early stages में कर लें हम, ज़्यादा effective हो जाता है. So you get 6 days after 30th आराम से to read Society, revise and come back. And then you get around 2-3 days for social justice. So in total 29th October से लेके 9th November तक 10 days आपके Society and Social Justice को designated है. So we are going to do that, right? Then there is a Diwali break from 10 to 14th. उसके बाद 18th को हम governance and 23rd को हम polity start कर. 18th के बाद हम polity पे आ जाएंगे. Polity के sessions 3 4 5 defined है. So by 5th December we'll be done with polity as well. And GS3 will be completed by 30th December. So 3 complete GS papers will be done by December 30th, along with Indian Society, which is 33% of the GS1 paper as well. January के लिए we have left history and geography. We have designated that in January month because January month is the month where we are inching towards prelims preparation, और history geography prelims में equally important है. So you will not feel the heat also while preparing history and geography in January. So it is designed keeping all the problems in mind that might be
faced by an aspirant. After that, we'll take 4 full-length tests to consolidate everything जो आपने अभी पढ़ा है पिछले 3 महीनों में, कि आप उसको अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड फैशन में सुबह शाम 3 घंटे में इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में आ गए हैं या नहीं. सो दिस इज गोइंग टू मेक यू मेंस रेडी. इफ नॉट 100%, अगर आपको लग रहा है कि यार इतना रिग्रेस शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर लेट्स से आपने 80% भी फॉलो कर लिया, तो aren't you much better placed than what you are today or what you intend to be if you are doing things on your own. तो ये समझने वाली बात है. डोंट फ्रेट और डोंट वरी कि यार ये पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या पूरी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. वाई? बिकॉज अगर आपने 3 पेपर भी कर लिए लेट्स से 4 में से, सो इवन देन इट्स अ मच बेटर सिचुएशन देन वी आर इन. और वैसे भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है, इसमें आप समझें अगर, तो इसमें आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज्यादा फर्स्ट स्टेप पे है, जहां पे कंटेंट हमारा होना इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज हिस्ट्री ज्योग्राफी में यू कैन नॉट थिंक कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य पे क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये किया होगा. वी हैव टू नो एक्चुअली कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया है. सो दैट इज अ पॉइंट ओवर हियर. सो इन दिस मैनर you will be able to develop the skill of answer writing, and hopefully in the time frame that we have scheduled over here. अच्छा, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा समझने की बात है. I got a lot of queries that कि सर ये जो दिन दिए हैं आपने, इसमें सिर्फ जीएस पढ़ना है या इसमें कुछ और भी पढ़ सकते हैं एंड ऑल दैट. ऑब्वियस सी बात है यार, सिर्फ जीएस नहीं पढ़ना है. अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने की जरूरत है कि अगर आप जून जुलाई से पढ़ रहे हैं या पिछले साल से पढ़ रहे हैं, जैसे भी है, आपने लास्ट प्रीलिम्स नहीं दिया था एंड ऑल दैट, इट डज नॉट मैटर पीपल कि आपने अब तक क्या किया है. अगर आप उस बात को लेकर वरिड है कि यार मैंने पिछले 3 महीने पढ़ाई नहीं करी या मैंने पिछले 6 महीने पढ़ाई नहीं करी, इट डज नॉट रियली मैटर, राइट. वॉट वुड मैटर इज वॉट आर यू गोइंग टू डू ओवर द नेक्स्ट 8 months. उस 8 महीने को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें कि सारी स्टेजेस को हम कैप्चर कर पाए एग्जाम की. So obviously last 4 months to 5 months depending upon how fearful are you of prelims, तो वो तो prelims में जाने ही जाने हैं. तो ये टाइम हमारे पास अभी बचता है नेक्स्ट 100 days, जिसमें हम बहुत थॉरली मेंस के लिए रेडी हो सकते हैं. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन दिस ईयर स्पेसिफिकली इज a lot of people in our program जिन्होंने मेंस पहली बार लिखा, they panicked big time, राइट. जो हमारे पिछले साल से जुड़े हुए थे, even though we did a lot of answer writing practice, but शायद थोड़ा सा rigorosity उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी और whatever. तो वो 3 महीने में बहुत पैनिक हुआ. जीएस के साथ साथ ऑप्शनल संभालने में बहुत दिक्कत हुई एंड ऑल दैट. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर को वेस्ट ना होने दें, राइट. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑन योर टोज ऑल द टाइम एंड यू आर कीपिंग विद द शेड्यूल. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी समझना है कि प्लीज डू नॉट स्किप द सेशन और प्लीज डू नॉट स्किप द टेस्ट इफ यू हैव नॉट कंप्लीट द टॉपिक. ये सोच के मत आना छोड़िए कि यार ये मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं जाके क्या करूंगी या क्या करूंगा. यू हैव टू कम टू द शेड्यूल टेस्ट. अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, स्टिल ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म, स्टिल ट्राई टू राइट समथिंग. और जब आप वो डिस्कशन करेंगे तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और होगी, आपका वैल्यूडेशन होगा. तो यू विल बी बेटर प्लेस्ड एनीवे एज टू व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट 2-3 days बिफोर द सेशन. सो सेशंस को बिल्कुल स्किप मत करिए. इट बिकम्स अ हैबिट कि एक दिन स्किप किया तो फिर स्किप करते रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेट्स नॉट डू दैट पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है. सो आई डोंट नो व्हाट आई वाज राइटिंग ओवर हियर अक्टूबर में, आई फॉरगॉट एक्चुअली. तो आइडिया इज कि इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. हाँ, आई वाज टेलिंग यू कि पढ़ना कैसे है, राइट. सो वी आर सिटिंग इन अक्टूबर पीपल, राइट. अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन दैट वी हैव. आपका कंपटीशन 5 लाख लोगों से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, राइट. आप 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं. पहली बात तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि यार सिर्फ 500 लोगों से मेरा कंपटीशन है जो टॉप 500 में है, मुझे उनको पछाड़ना है, या तो इसको समझ के रखिए. बट टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, 2023 में लेट्स से 13,000 पीपल टुक द एग्जाम. इन 13,000 में से 3,000 तो इंटरव्यू देने जाएंगे एंड फाइनली 1,000 सिलेक्ट होंगे. तो दीज 10,000 पीपल ऑल्सो, सॉरी ज्यादा हो गया शायद, एंड दीज 2,000 पीपल ऑल्सो आर कमिंग बैक टू compete with you people in 2024.
एंड क्योंकि इन्होंने मेंस लिखा है ऑलरेडी अभी, सो दे आर ऑलरेडी बेटर प्लेस्ड देन यू आर अगर आप अगले 3 महीने इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे. सो अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. एट द सेम टाइम सिर्फ ये 12,000 लोग नहीं है, इन 1000 में से भी जो लोग दोबारा पेपर देते हैं 500-600 तो मान ही लेते हैं, सो 500 रैंकर्स भी आपके साथ पेपर दे रहे हैं. सो दे हैव ऑलरेडी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द पास्ट 1 ईयर. तो अब उनको बीट करना है हमें, या उनके एट पार आना है हमें एटलीस्ट. तो वी वांट टू इंश्योर कि हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर बिल्कुल वेस्ट ना करें, राइट. एंड इवन मोर सो अगर आगे भी हम कुछ कर पाएंगे तो देखेंगे उसका. सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए यू विल हैव टू स्टडी प्रोबेबली 10 आवर्स या 11 आवर्स अगर हम रिगरस आंसर राइटिंग करके चारों जीएस के पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं. एंड आई थिंक दिस कैन बी डन और अचीव्ड एज वेल, राइट. इसमें आप दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, बिकॉज आई फील कि एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ के वैसे भी बहुत ज्यादा फटीक हो जाता है, एंड इट इज इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट टू क्लॉक 10-11 आवर्स. तो एक पार्ट में तो आपको ऑप्शनल डालना ही डालना है अपना, ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग आपको काफी करनी है. एंड द सेकेंड पार्ट विल बी फॉर जीएस, राइट. स्पेंड 4 to 5 आवर्स ओवर हियर, स्पेंड 4 to 5 आवर्स ओवर हियर. और फिर जो 1-1.5 घंटा बच जाता है आपके पास, उसको आप करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. तो इसमें जब आप पढ़ रहे हैं वाइल रीडिंग, मेक नोट्स, छोटे नोट्स बनाइए अगर आपके पास नहीं है. रेफर टू PYQs टू अंडरस्टैंड क्या पूछ सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. एज आई सेड, हैप्पीनेस की डेफिनेशन नहीं याद करनी है. व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू, अगर यूपीएससी पूछ रहा है तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर रीडिंग. एट द सेम टाइम थोड़ा लॉजिक भी लगाइए चीजों को लेके कि भाई अगर हम नक्सलिज्म पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं. थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करिए. एट द सेम टाइम एक टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जस्ट फॉर द रेफरेंस सेक, उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक में किस टाइप से क्वेश्चन बनाया गया है, दैट विल ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक और कोई नई डायमेंशन क्या हो सकती है. सो लेट्स ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट एज वेल. तो पढ़ते हुए ये चीजें रेफर करें सिर्फ, एंड देन यू मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड ट्राई टू कम अप विद दी नोट्स एज वेल. आई विल गिव यू सम सैम्पल नोट्स इफ यू नीड. कुछ टॉपिक्स में मैं आपको सैम्पल नोट्स दे दूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह से डायमेंशंस बनाते हुए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं हम. ठीक है, वील मेल इट टू यू. ऑप्शनल में भी ध्यान रखो दोस्तों. ओवर द नेक्स्ट 3 months अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जनवरी आते आते सीसैट का भी बहुत फियर हो गया इस साल तो, और जीएस में जो ऑप्शंस बदल दिए इन्होंने, दैट हैज आल्सो क्रिएटेड सम प्रॉब्लम फॉर अस. तो हमें वो भी करने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो ऑप्शनल में भी आप शेड्यूल बनाइए अच्छे से कि अगले मान लो 16 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक what all are the areas that I want to cover, paper 1, paper 2. अगर आप लोगों ने दोनों पेपर ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं तो मेक श्योर कि आप दोनों पेपर की आंसर राइटिंग वगैरह करके दिसंबर तक पैक करेंगे. अगर कोई अभी स्टार्ट ही कर रहा है तो एटलीस्ट ट्राई कि मैं कोई भी एक पेपर को अच्छे से कर लूं, प्रेफरेबली पेपर 1, क्योंकि जनरली इन मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल पेपर 1 इज लेंथियर देन पेपर 2 जनरली, और पेपर 2 काफी डायनेमिक भी होता है अक्सर, चाहे PSIR ले लो, चाहे पब ले लो, चाहे एंथ्रो ले लो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो एक ना एक पेपर तो हमें थॉरली करके रखना है. एंड इफ नॉट 10 years, अभी 5 years के PYQ इन द फर्स्ट इंस्टेंस वो तो करने ही करने हैं. इफ टाइम अलाउज डू मोर, 5 करो. उसके बाद अगर लग रहा है और कर सकते हैं तो 7 करो, और अगर बहुत ही टाइम है तब जाके 10 करो, राइट. 10 टोटल करने हैं, अभी नहीं करेंगे, ओवर टाइम कर लेंगे, प्री के बाद कर लेंगे, थोड़े से 2-3 साल के, विल डेफिनेटली डू इट. इसमें आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि 23 का पेपर अपने पास रखिए अलग से. लेट्स नॉट स्पॉइल दैट पेपर, खासकर ऑप्शनल वगैरह का. तो उसमें क्या फायदा होगा, जब आपने ऑप्शन प्रिपेयर कर लिया है, वील ट्राई टू टेक द 2023 का पेपर एज अ टेस्ट डायरेक्टली. उसको हम टेस्ट की तरह करेंगे. देन वी कैन एनालाइज दैट कि जितना मैंने तैयार करा, मैं 23 में पेपर देता तो क्या होता, या यूपीएससी का पेपर उठा के देता तो क्या होता. ठीक है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू.
कुछ बच्चों को सीसैट का बहुत फियर हो गया है, तो अगर आप सीसैट भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि 1 नवंबर के आसपास से सीसैट स्टार्ट करिएगा, राइट। बहुत ज़्यादा लेट मत करिए अगर सीसैट का बहुत ज़्यादा फोबिया है, और उसमें इसी टाइम में आपको इनकॉर्पोरेट करना है। तो ऑप्शनल में आप सीसैट वीक में 2 क्लासेस या 2 बार करें अभी के लिए, नवंबर दिसंबर में, वीकली ट्वाइस। तो ऑप्शनल जो आपका चल रहा है वहां पे आप 1 आध घंटा कट करके और 1 या 2 घंटा कट करके आप सी सैट उसमें नवंबर से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसको सी सैट का बहुत ज्यादा फियर हो गया है, राइट। ध्यान रखने की जरूरत है। सी सैट की हम लोग भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, 30 अक्टूबर से वी आर स्टार्टिंग द क्लास। तो किसी को वो हफ्ते में 2 ही क्लास होंगी, तो किसी को अगर वो ज्वाइन करना होगा तो वो कर लीजिएगा, अदरवाइज सी सैट के लिए तो बहुत मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा ही है ऑलरेडी, ठीक है। एंड फाइनली what we have to do, people, is you have to read, then you take a test, and then you review as well. Most important part जो हम मिस कर देते हैं, most important part is हम रिव्यू नहीं करते हैं. We never go back to the question that we have written in the test. बस कॉपी चेक होके आ गई, मेंटर के साथ एक बार बैठ गए तो ठीक है, बट अपने लेवल पे हम कभी चेक नहीं करते हैं. In fact, all the 10 questions that you're going to write with us every 3 days, in every session, what you have to do over there is go back home after discussing the paper in the class. You have to go back home, review your answer that you have written, and try to see मैं और क्या better कर सकती थी या मैं क्या और better कर सकता था. Yes, अपने लेवल पे मैं क्या कर सकता था. अभी तो 1.5 घंटे में मैं लिखा. What I've seen people doing most of the time, they just mindlessly keep writing answers. They never go back and check कि यार इसको better लिख सकता था क्या. On the time or during the time of writing, you will never be able to think of that, people. You will never be able to think of that, right? उसमें तो आप आंसर ही पूरा करते हैं तो बड़ी बात हो जाती है. But it is a blunder, it is a crime अगर आप आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, that you do not go home on the same day or at least the next day and you pick up the paper and you analyze कि यार इस आंसर को मैं और बेटर कैसे लिख सकता था, इसमें इंट्रोडक्शन में और बेटर कैसे कर सकता था, इसमें कंक्लूजन में और बेटर कैसे कर सकता था. In fact, the questions that are highly probable, मेंस में तो आसानी से पता चल जाता है, एटलीस्ट 5 7 8 क्वेश्चन तो पता चल ही जाते हैं, इफ नॉट ऑल, कि यार ये तो थीम्स चल ही रही हैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो क्वेश्चन दैट आर हाईली प्रोबेबल, देन क्वेश्चंस दैट आर रिपीटेड इन नेचर, तो उसके तो हमारे पास रेडीमेड इंट्रोडक्शन या रेडीमेड कंक्लूजन एटलीस्ट एक थीम पॉइंट ऑफ व्यू से होना ही चाहिए कि यार अगर पंचायती राज पे क्वेश्चन आता है तो दिस इज गोइंग टू बी देयर इन माई इंट्रोडक्शन. अगर आरटीआई पे क्वेश्चन आता है तो दिस इज गोइंग टू बी देयर इन माय इंट्रोडक्शन. अगर फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आता है तो ये मेरे कंक्लूजन में रहेगा ही रहेगा, राइट. कि इन द एंड कि भाई इन ऑर्डर टू मेक फूड एग्रीकल्चर सस्टेनेबल फॉर फार्मर्स, फूड प्रोसेसिंग मस्ट बी मेड अ प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी इंडस्ट्री और डेवलप्ड एज अ प्राइमरी इंडस्ट्री इन द कंट्री. इस टाइप का कुछ कोई कोटेशन आपने यूज कर लिया, कोई आपने फॉरवर्ड लुकिंग सजेशन यूज कर लिया, कोई आपने कमेटी यूज कर ली, एटसेट्रा एटसेट्रा. So over time, we are going to do that. Every 3 days, you are going to write 10 answers with us every 3 to 4 days. So you will see we will be going through at least 350 plus questions in the next 3 months. 350 plus questions are equivalent to 18 papers, people. 18 full papers. 18 full paper हम पूरे साल की टेस्ट सीरीज में भी कभी नहीं लिख पाते हैं. हम शुरू में जोश में होते हैं 7 8 पेपर तक, उसके बाद ठंडा हो जाता है जोश. So in the next 3 months, if you are able to write 18 paper equivalent answers, imagine where will you be vis-a-vis today, right? So having said that, बस मेहनत करनी है, and next 3 months we have to make every single day count. अगर आप किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. 18th को आपको पढ़ के आना है, 10 AM in the morning we'll take a test and 11:30 we'll start discussing. Anyone, any doubt? यार ये जूम सेशन इसीलिए है ताकि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाए. हेलो सर. यस सर. सर मैं कब आऊँ आपसे मिलने? सर कभी भी आ जाओ सर, 6:30 के बाद. ओके सर. Pranav, Zoom session will start at 11:30. If you want to sit in front of the
screen and write the test and you want us to play a timer, we can do that. There's no problem, right? Palak, the discussion sessions are generally limited to 2 hours, but it will depend on how much interaction we are having in the class. It can extend to 2.5 hours also. Any other doubt? Chaliye, if there's no doubt, then best of luck, people. Let's start in a rigorous manner. Let's cover all the 4 GS papers over the next 100 days, and let's be mains ready by the time we come to the new year. Thank you very much. Let's meet on the 18th.